Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior getting into the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. So first of all, the first topic for us, the injustice of exceptionalism. Look, this topic is very important for your legal reasoning perspective, plus GK perspective, plus any examination, any law examination that you are going to give in future. This topic is very much important. I am emphasizing because it is related to the Bilkis Bano rape case. It is related to Bilkis Bano, and this is related to the Godhra incident, that what has happened in the Gujarat incident. It is related to that, and such kind of questions you can easily expect from CLAT, even the DULLB. They can be fond of such cases. They can ask. There is no if or but, and CLAT 2023 is in December, is on 18 December, yes. And you should read this topic, just mug up it. You can expect such questions in your examination, and if such question arises, you should be able to answer each and every options. Each and every question you should be able to answer in that very particular paragraph, because today I am going to cover it just in and out, right? Second topic for us is resolution confuses more than it clarifies, MPCs Varna argued. Right, this topic is related to Monetary Policy Committee. Again, it can be added in the economics part का ये topic है आपके लिए. Third topic is about the rat hole mining. CLAT ने question पूछा है इससे पहले भी. They have asked question from the rat hole mining, and they can ask this time also, because Meghalaya में जब आप Google search करेंगे, whenever you get time, just do one thing: Google search on Meghalaya rat hole mining. Go onto the news tab and just click on it. You can find a number of thousands of news on Meghalaya rat hole mining, right? So such topics are very important for your examination point of view, and today is a very important day for the Indians also, because our youngest prime minister's birthday is today, and you should celebrate it at least, right? And happy Janmashtami to you all, right? Coming to the news analysis for today, the first one is the injustice of exceptionalism. राइट, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दिस टॉपिक हैव बीन रिटन इन अ वेरी नाइस मैनर, एंड आई सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड दिस टॉपिक एटलीस्ट वंस आपको ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज आई हैव ओपन दिस टॉपिक लाइक कंप्लीटली लाइक एनीथिंग, एंड टुडेज सेशन ये थोड़ा सा लंबा होगा, सो जस्ट बियर इट, राइट? कुर्सी की पेटी बांध लेनी है और स्टार्ट करना है आज का न्यूज एनालिसिस ऑन बिल्किस बानो, राइट? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कॉग्निजेंस लिया, और इसमें जो ऑथर है वो 39A से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 39A. प्रोजेक्ट 39A मैं आपको एक पहली बार बता दूं, जब व्हेन यू गो टू द डाउन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर राइटर, देन आपको ये प्रोजेक्ट 39A मिलेगा. प्रोजेक्ट 39 ये आपको लीगल एड से रिलेटेड होता है, तो ये आपके लिए प्लस इंफॉर्मेशन हो गया सर, एक प्लस इंफॉर्मेशन हो गया कि 39A कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लीगल एड से डील करता है, तो आर्टिकल 39A, राइट? बताइएगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इज इट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, राइट? ये आपके लिए क्वेश्चन है, 39A याद रखना है. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, इस पूरे टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर किया गया है कि जो बिल्किस बानो, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, बिल्किस बानो इज अ रेप विक्टिम in after the Godhra incident, and CBI has just did their work, Supreme Court did their work, and 50 lakh compensation have been provided to the Bilkis Bano, but still the rape convict have been released on the basis of remission. We will get into the details of remission and pardoning powers of the governor and the president, right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस पूरे आर्टिकल को. अगर हम सम अप करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना होगा? पार्डनिंग पावर आपको 161 में भी आता है और 72 में भी आता है, राइट? फर्स्ट पार्डनिंग पावर अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर. सेकेंड थिंग, दिस होल टॉपिक कवर्स अबाउट द प्रिजनर्स एक्ट इंडिया में बहुत पुराना है, राइट? प्रिजनर्स एक्ट बहुत पुराना है, 1800 का प्रिजनर्स एक्ट है. थर्ड पॉइंट इज अबाउट व्हाट इज अबाउट द पार्डनिंग types of pardon. Fourth is the cases, and the fifth is the development. ये डेवलपमेंट है,
तो ये पूरे 5 एस्पेक्ट्स को इस पूरे आर्टिकल में कवर किया गया और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज द रिलीज ऑफ दिस कन्विक्ट इज ओके एंड हाउ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड हाउ इट इज नॉट ओके, राइट। ये सब चीजों को क्वेश्चन भी किया गया और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किया गया है। एंड व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। कमिंग टू द जस्ट अ स्टोरी प्रायर टू दिस टॉपिक, कि आपको एक पूरा ओवरव्यू और एक बैकग्राउंड मिल जाए दैट आई हैव टोल्ड यू, बट for your understanding I have written this also, so just access the ppt from the telegram channel, link will be in description, so just access it. And here are the story behind this whole incident. First of all, this story talks about the Bilkis Bano incident, and it is related to this 11 men who were sentenced. Actually क्या हुआ था 2008 में बिल्किस बानो was a pregnant woman थी 2002 गुजरात राइट्स के टाइम पे, 2002 गुजरात राइट्स के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन थी बिल्किस बानो, राइट। बिल्किस बानो को उसकी फैमिली के साथ काफी डेथ थ्रेट्स दिए गए, फैमिली में से बहुत लोगों को मार दिया गया। सी वाज लेफ्ट अलोन एंड सी वाज रेप्ड बाय 11 अक्यूज्ड, राइट। 11 अक्यूज्ड के ऊपर चार्जेस लगे रेप के। सी वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम। लुक हाउ द थिंग्स ब्रूटल आर, द ब्रूटलिज्म का हाइट जो होता है ना, इट्स अ जेनिथ ऑफ ब्रूटलिज्म, यू कैन से जेनिथ ऑफ ब्रूटलिज्म। तो 11 अक्यूज्ड ने जो रेप किया था बिल्किस बानो का 2002 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुजरात राइट्स, उनको 2004 में पहली बार अरेस्ट किया गया था, राइट। और 2008 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उनको पनिशमेंट दिया और प्रेग्नेंट वुमन का रेप, मर्डर और अनलॉफुल असेंबली, बहुत सारे चार्जेस लगाए गए आईपीसी के अंडर और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। याद रखिएगा ये इंसिडेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था ऑन द प्राइमा फेसाई सीबीआई स्पेशल कोर्ट के थ्रू। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर करते हुए इस चीज को अपहेल्ड किया और ये भी कहा कि सर 50 लाख का कंपनसेशन भी आप देंगे। तो ये तो हो गया प्रायर हिस्ट्री। तो सर अभी ये चीज कहां से ओरिजिनेट हो रही है, व्हाई दिस थिंग्स आर ओरिजिनेटिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद इन कन्विक्ट ने लूप होल्स का प्रॉफिट उठाया and what they did, they applied for the remission under the 1992 act of Gujarat, क्योंकि प्रिजन जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, ये याद रखना है। प्रिजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, प्रिजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। केवल एक जगह है जहां पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होता है, वो है एनसीटी ऑफ दिल्ली, पुलिस सेंटा के अंदर होती है, राइट। तो ये चीज याद रखना है। तो कमिंग टू दिस न्यूज, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको अवार्ड किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर 2019 में उनको 50 लाख का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया। तो इस पूरे सेक्शन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 जो है वो आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, एंड 161 जो है वो आपका गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नर से रिलेटेड है। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्डन का मतलब बहुत कुछ होता है, केवल माफी नहीं होगा, ये याद रखना है, राइट। पार्डन बहुत डिटेल में बताया गया है एंड वी विल गो इनटू द डिटेल्स आल्सो। 161 जो है वो इन लेमाइन है आर्टिकल 72 के, मतलब जैसा 72 में वैसा ही पावर 161 में गवर्नर के पास भी है, राइट। कमिंग टू दिस एस्पेक्ट, तो जो प्रेसिडेंट का रेमिशन, वो पार्डनिंग पावर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट। आपके माइंड में आ रहा हो सर ये क्या क्या बोल रहे हो, रिप्राइव, पार्डन, रिस्पाइट, रेमिशन, तो इन सब का मतलब जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इन एग्जाम कम्स कि व्हाट दिस पार्डन मींस, व्हाट इज दिस रिप्राइव मींस, तो बहुत जरूरी होता है। बट प्रायर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, आपको मैं इस केस के बारे में एक बार बताऊं कि इस केस में जो उनको छोड़ा गया है, जो कन्विक्ट्स थे उनको जो रिलीज मिला है जेल से, पार्डन मिला है बेसिकली उनको, तो बेसिकली उनको रेमिशन किया गया है, राइट। उनका रेमिशन हुआ है, उनका रेमिशन हुआ है। रेमिशन में क्या होता है कि जो सेंटेंस होती है उसको कम कर दिया जाता है, बट उसकी डिग्री वही रहती है, उसकी डिग्री वही रहेगी, बट सेंटेंस का नंबर कम कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर डाला है, एक्चुअली इस आर्टिकल में भी डाला गया ये चीज कि इफ अ पर्सन, लेट सपोज कि इफ अ पर्सन हैव बीन कन्विक्टेड फॉर अ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट उसको प्रोवाइडेड है, बट उसको 2 ईयर्स का रेमिशन मिल जाता है, -2,
2 years का रेमिशन मतलब जैसे 10 years का, लेट सपोज इट इज अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो रेमिशन में रिगरस इम्प्रिजनमेंट सिंपल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो रिगरस ही रहेगा, लेकिन 10 साल का ना करके वो 8 साल का ही होगा, वो 8 साल का ही होगा, राइट। तो यहां से ये वर्ड आता है आपका रेमिशन, तो वो 10 साल का ना होके वो 8 साल हो जाएगा, लेकिन 8 साल का क्या होगा, रिगरस होगा। यहां पर भी वही चीज है कि जो लाइफ कन्विक्ट्स थे उनको उन्होंने कहा कि सर 15 साल तो हो गया, अब कितना रहे अंदर निकालो। तो फर्दर बहुत सारे केसेस हुए इसमें, सुप्रीम कोर्ट में बात गई, हाई कोर्ट में बात की, फर्दर देयर ग्राउंड ऑफ रेमिशन। तो अगर आपसे पूछे कि किस ग्राउंड पे, तो सर रेमिशन के पॉइंट पे उनको मिली थी। रेमिशन का क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ सेंटेंस सेम रहेगा बट द नंबर ऑफ सेंटेंस डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और ये जो रेमिशन है वो प्रिजन्स एक्ट के थ्रू होता है। व्हेन द प्रिजन्स एक्ट केम, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लैट ने डाले हैं बहुत बार, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन DULLB। तो 1894 में प्रिजन्स एक्ट आया था, प्रिजन्स एक्ट। और प्रिजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट बिकॉज पुलिस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, राइट। प्रिजन्स एक्ट आया था 1894 में। और ये जो पूरी कहानी होती है आपकी रिमिशन की, ये जो पूरी पार्डन प्रोवाइड किया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि केवल इसी प्रिजन्स एक्ट में ही है। सेक्शन 432 ऑफ CRPC में भी है, सेक्शन 433 ऑफ CRPC में भी है, और सेक्शन 433A ऑफ CRPC में भी है, राइट। तो ये पूरा एक क्लस्टर ऑफ सेक्शंस है जहां पर इन रिप्राइव, रेमिशंस, रिस्पाइट एंड पार्डन्स इनको प्रोवाइड किया गया। और आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 से ये पावर डिराइव होती है, राइट। तो अगर कोई भी आपसे पूछे, कोई भी क्या क्लैट अगर आपसे पूछे कि किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है, तो आर्टिकल 72 एंड 161। कितने तरह के, बेसिकली 5 होते हैं, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, राइट। और रेमिशन का मैंने आपको बहुत अच्छे से मतलब बताया है कि डिग्री कम हो जाती है सेंटेंस की, बट डिग्री कम नहीं होती है बट नंबर कम हो जाती है, राइट। डिग्री कम नहीं होती है मतलब कि रिग्रेस ही रहेगी, बट 10 की जगह 8 साल का अब आपको करना पड़ेगा। और इस केस में, बिल्किस बानो के केस में भी सेम इंसिडेंट हुआ है, राइट। तो इसको आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिल्किस बानो का इंसिडेंट। ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए जो लोग देख रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ लॉ स्टूडेंट, यू शुड नॉट रीड इट विद द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स, you should read it with the lens of law, right? Coming to the next aspect, the types of pardoning power of the president. स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस पीपीटी विल बी इट अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल, वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा इस पीपीटी को, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज आई हैव ट्राइड कि आपको एक जगह मिल जाए सब कुछ, राइट। फर्स्ट पावर होता है पार्डनिंग पावर। लोग, पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि डायरेक्ट माफी हो जाती है, कितनी भी साल की इम्प्रिजनमेंट हो, कितनी भी साल की, 50 साल, 60 साल, 20 साल, इससे मैटर ही नहीं करता है, वो पनिशमेंट भी पूरा कंप्लीट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यू आर फ्री टू जस्ट मूव। यहां पर देख सकते हैं, व्हेन प्रेसिडेंट पार्डन्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन कंप्लीटली एब्सॉल्व, पूरा खत्म, पूरी माफी भाई, यू आर जस्ट फ्री टू मूव, राइट। पूरी माफी हो जाती है, पार्डन, तो ये हो जाता है। आपने निर्भया रेप एंड मर्डर केस में भी सुना होगा इस पार्डन वर्ड को कि हम माफीनामा दर्ज करेंगे। पार्डनिंग बहुत बहुत ऊंचे लेवल की चीज होती है सर, इतने आसानी से पार्डन नहीं मिलता इन सब केसेस में, राइट। एक केस था, व्हेन यू गो टू द लॉ स्कूल यू विल रीड इट, KM नानावती केस, राइट। KM नानावती केस था, आप लोगों ने वेब सीरीज भी देखी होगी उस पर, उसमें भी पार्डन का जिक्र हुआ है, राइट। और अभी रिसेंटली पार्डन का भी एक केस आया था, व्हेन द राजीव गांधी कन्विक्ट वाज पार्डन्ड बाय द फैमिली, राइट। गांधी फैमिली ने पार्डन प्रोवाइड कर दिया था उनको, बट ही वाज बिफोर द फैमिली ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो पार्डन आपने बहुत बार सुना होगा नाम, आज मतलब भी जान लीजिए कि पूरे कन्विक्शन और कन्विक्ट सेंटेंस सब कुछ डिसॉल्व हो जाए, यू आर फ्री टू मूव। सेकेंड थिंग इज रिस्पाइट। रिस्पाइट इज समथिंग डिफरेंट। रिस्पाइट में क्या होता है कि लेजर सेंटेंस होता है। जैसे ओरिजिनली फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि कुछ फिजिकल एक्ट या फिर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं, या आपका कंडक्ट बहुत अच्छा होता है, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्ट, राइट। और आपके जो जिस कन्विक्शन के अंदर हो दैट इज नॉट दैट मच ऑफ क्रूल नेचर, या फिर इफ यू आर अ वुमेन, यू आर प्रेग्नेंट, तो क्या होता है, लेसर सेंटेंस दे दिया जाता है कि जस्ट सपोज कि 10 साल का है तो सर कम कर दो इसको, प्रेग्नेंट लेडी है 2 साल कर दो, 2 से 3 साल कर दो, इस टाइप से। इफ समवन इज डिसेबिलिटी है तो उसको और कम कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास लेके जाइए, सर रिस्पाइट कर दो, सर 10 साल की सजा दे दी कोर्ट ने, आप कम कर दो सर, तो उसकी स्क्रूटनी होगी, इसको चेकिंग किया जाएगा, फिर उस सेंटेंस को कम कर दिया जाएगा।
राइट. ही चूज टू अवॉर्ड लेजर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल. लेट सपोज 5 years का एक इम्प्रिजन अवार्ड किया गया कोर्ट ने. दैट पर्सन वेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 टू टेक द पार्डन. राइट. तो प्रेसिडेंट ने कहा कि सर पार्डन तो हम नहीं दे सकते आपको क्योंकि आपका क्राइम पार्डन के लायक है नहीं, बट वी कैन ऑफर यू रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर डिसेबल, ये वो XYZ 10 तरह की चीजें उसमें देखी जाएगी. फिर रेस्पाइट उनको प्रोवाइड किया जाएगा. रेस्पाइट क्या मतलब, अगर 5 साल है तो चलो कोई बात नहीं, तुम 1.5 साल रह लो, 2 साल रह लो जेल में. राइट. तो इस चीज के लिए है रेस्पाइट आता है यहाँ पे. थर्ड है आपके लिए रिप्राइव. रिप्राइव इफ समथिंग डिफरेंट. इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाता है कि रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, इसको अपने राइट्स को यूज करने दो. जैसे कि लेट सपोज इफ some person, if X is a person, I am explaining you in very much detail. ये द हिंदू से ऊपर हो रहा है ये एनालिसिस, ये लीगल एनालिसिस चला गया इस चीज का, तो यू शुड रीड इट वंस. राइट. तो लेट X इज अ पर्सन जिसको डेथ पेनाल्टी दिया गया है, जिसको डेथ पेनाल्टी दिया गया है X को. राइट. अब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो बोलता है कि सर मेरी डेथ पेनाल्टी, लेट सपोज 20 अगस्त है आज. राइट. 20 अगस्त है. तो वो जाता है कोर्ट में, उसको कोर्ट ने कह दिया कि सर तुम्हारी ना डेथ होगी, तुम्हारी हैंगिंग होगी 27 अगस्त को. तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तुरंत पार्डन मांगने के, सर प्लीज गिव प्रोवाइड मी पार्डन अंडर आर्टिकल 72. और गवर्नर के पास जाएगा अंडर आर्टिकल 161. इन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं माफी तो नहीं देंगे, लेकिन वी कैन प्रोवाइड यू अ रिप्राइव. रिप्राइव क्या होता है, वी कैन प्रोवाइड यू अ रिप्राइव, कि हम आपके जो ये 27 अगस्त का जो डेट आपके लिए सेट किया गया है, इसको हम एक्सटेंड करके 27 नवंबर कर देते हैं. 27 नवंबर कर देते हैं ताकि आपको टाइम मिल जाए अपना एग्जीक्यूशन को रोक करके आप कुछ अगर मतलब आगे कुछ अपील फाइल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू जस्ट गो बियॉन्ड द केस की कुछ और करना है आपको, कुछ और स्टेप्स यूज करने हैं लॉ के. राइट. तो उसमें आप रिप्राइव कर सकते हो. तो उसमें क्या करेगा प्रेसिडेंट या गवर्नर, क्या करेंगे कि एग्जीक्यूशन को रोक लगा देंगे. डेथ पेनाल्टी को उन्होंने होल्ड पे डाल दी, रुको अभी नहीं, 27 हो, 2 महीने रुक जाओ सर, थोड़ा टाइम दो उसको. ही स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड. टेम्पररी पीरियड ये 2 महीने के लिए रोका है. इवन आई टोल्ड यू ये परमानेंटली नहीं रोका जाता है, 2 महीने के लिए रोक दिया. बाय डूइंग दिस ही एनेबल्स द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम इट. राइट. तो ये चीजें याद रखनी है. रिप्राइव का मतलब होता है उसे होल्ड कर दिया, रेस्पाइट का मतलब सेंटेंस कम कर दिया ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस लाइक डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी. पार्डन मतलब कंप्लीट माफी. अब आता है रेमिट. रेमिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, रेमिट. रेमिट और रेमिशन एक साथ ही पढ़ा जाता है. रेमिट में क्या होता है कि आपकी सेंटेंस की जो ग्रेविटी है और जो डिग्री है वो वही रहेगी, बट नंबर ऑफ ईयर्स को डिक्रीज कर दिया जाएगा. सेंटेंस की ग्रेविटी वही है, नंबर ऑफ ईयर को डिक्रीज कर दिया जाएगा. मतलब ये है कि आपको अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट बहुत खराब होता है. रिगरस इम्प्रिजनमेंट, राइट, उसमें आपसे बहुत तरह तरह के काम करवाए जाएंगे जो आई गेस कि आप नहीं करना चाहें. when you will go to the law school and you might have a visit to the jail once, at least once, 5 साल में एक बार तो जेल विजिट करने का मौका मिलेगा. and you will get a jail stamp on your hand also. तो जेल नहीं जाना है, जेल विजिट करने का मौका मिलेगा. तो यू विल हैव अ व्यू कि सर कैसे होता है वहाँ पे. तो रेमिट और रेमिशन में क्या होता है कि इफ यू आर सर्विंग अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, राइट, इफ यू आर सर्विंग अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि सर आपको हम पार्डन, रिप्राइव और रेस्पाइट तो कर नहीं सकते, हम आपको रेमिशन कर सकते. जैसे इस ग्राउंड पे हुआ है अभी बिल्किस बानो के इंसिडेंट में, तो इन्होंने कहा कि 15 साल हो गए सर, आप छोड़ दो, हो गया, अच्छा कंडक्ट है हमारा, जस्ट लीव मी. तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कमिटी बनाई और उस कमिटी ने यूनानिमसली इनको बाहर कर दिया. तो दे गॉट दिस रेमिशन कि ठीक है 16 साल की जगह 14 साल में छोड़ दो, तो 14 साल तो पूरे हो गए, खत्म, चलो ठीक है निकलो बाहर. इस तरह से ये प्रोसेस प्रोसीड करता है. राइट. तो दीज आर टेक्निकल टर्म्स, थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल गेट इन टू द फ्लो. राइट. इवन एवरीवन टेक्स टाइम टू गेट इन द फ्लो, इट्स जस्ट फाइन. Just read it at least twice or thrice, read it, you will get into the thorough understanding of this. Fifth one is the commute. Commute is like, basically it is a, basically punishment is a lighter form of punishment, right? Like इसमें नंबर कम नहीं किया जाता आपका, या फिर कुछ ईयर घटाया बढ़ाया नहीं जाता है, या फिर आपको माफी नहीं दी जाती. इसमें क्या होता है कि इफ यू आर सर्विंग अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. ये याद रखना, ये कम्यूट में होता है. इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे.
कि कम्यूटेशन में कौन सा ऑप्शन सही है, रेमिशन में कौन सा, रेप्राइव में कौन सा, रेस्पाइट में कौन सा, पार्डन में कौन सा। तो अगर कंफ्यूज करोगे तो रेस्पाइट का रेप्राइव करोगे और रेप्राइव का कम्यूटेशन करोगे। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आई हैव टेकन टाइम एंड आई हैव गिवन यू द कंप्लीट पीपीटी। तो जस्ट गो थ्रू दिस पीपीटी, एटलीस्ट मैंने उतना ही डाला जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आई हैव एडेड अ क्वेश्चन इन द एंड रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, इस पूरे आर्टिकल में एक चीज की बात की गई है, रिमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 से 2014 विच इज बेटर। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट द बेटर। इन द जनरल सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं एक्ट्स या पॉलिसीज को टेंडर करती है जिन पे लिबरली थोड़ा सा होता है। दे डोंट गो फॉर द हार्श, राइट। हार्श पनिशमेंट इंडियन लॉ की जस्ट लाइक इमेज नहीं है, दे गो फॉर द लिबरल पनिशमेंट्स, राइट। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि हार्श पनिशमेंट इंडिया की नहीं होती है। तो इस केस में क्या हुआ कि इनिशियली 2014 की बात हो रही थी कि 2014 जो रेमिशन पॉलिसी है उसको हम फॉलो करेंगे, बट क्योंकि कन्विक्शन 2008 में हुआ है सीबीआई से, तो हमने 1992 का फॉलो किया। 1992 वाज नॉट बेटर देन 2014। 2014 में अगर इनको डालें बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट है तो इनका कभी रिमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2014 का जब रेमिशन पॉलिसी मैंने आप मेंशन किया है तो प्रिजन इसमें क्या कहा जाता है 2014 के रेमिशन पॉलिसी में, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 आर नॉट एलिजिबल। और बिल्किस बानो को किसने प्रोवाइड किया? सीबीआई ने, राइट। थर्ड, प्रिजनर्स कन्विक्टेड फॉर मर्डर विद रेप और गैंग रेप आर नॉट एलिजिबल। और बिल्किस बानो मर्डर और गैंग रेप में ही चार्ज थे। तो ये चीज को याद रखना है, राइट। तो ये चीजें याद रखनी। और सीबीआई तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही आया है। तो बिल्किस बानो के कन्विक्शंस का 2014 के रेमिशन पॉलिसी के अंदर रिलीज होना पॉसिबल ही नहीं है सर, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि अगर 2014 के रेमिशन पॉलिसी को फॉलो करे तो इट इज अ रिगरस वन एंड इट विल प्रिवेंट दोज कन्विक्ट्स टू सर्व आउट ऑफ द जेल, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर जस्ट टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। तो 2014 का फॉलो नहीं किया गया। किस पॉलिसी को फॉलो किया गया? 1992 की पॉलिसी को फॉलो किया गया। वो बेसिकली यही बोलता है कि अगर कन्विक्शन हो चुका है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो आप कर सकते हो रेमिशन पॉलिसी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल नहीं होता है, राइट। ये चीजें को याद मत रखना, जो मूवीज और सीरीज में देख करके लोग याद रखते हैं 14 साल, मिनिमम 14 ईयर्स का होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा जाता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 ईयर्स, तो वो होता है, राइट। और अगर जज ये लिख देते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन, तो जब तक नेचुरल लाइफ है तब तक चलेगी, राइट। अब बीच में रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, ये आपके बाहर निकलने के तरीके हैं, राइट। एक आता है आपका फरलॉग। फरलॉग बेसिकली क्या होता है कि जो मोनोटोनस हो जाते हैं ना, प्रिजन में रहते रहते लोग, बहुत लंबे लंबे जिनके कन्विक्शंस होते हैं 30 साल 40 साल, तो फैमिली सोसाइटी से ना कटे तो उनके लिए फरलॉग होता है। परोल नहीं होता है, परोल इज अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन फरलोग इज अ लॉन्ग पीरियड। फरलोग लंबे टाइम के लिए दिया जाता है और बिना किसी कंडीशन के लिए दिया जाता है, और परोल कंडीशनल होता है। ये चीज याद रखना, फरलोग वर्सेस परोल, ये आपको याद होनी चाहिए। पेरोल इज फॉर द शॉर्ट टाइम, फरलोग इज फॉर द लॉन्ग टाइम, राइट। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ये पॉइंट, इसमें है नहीं और इस आर्टिकल में भी नहीं मिलेगा। इफ यू हैव एनी डाउट ड्यूरिंग फरलोग और परोल, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर इट। एंड 1992 का रेमिशन पॉलिसी फॉलो किया गया है बिल्किस बानो केस में, ना कि 2014 का। और 2014 का अगर फॉलो करते तो वही मैंने आपको बता दिया कि 2014 तो सीधा बोलता है कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आओगे तो नहीं होगा, और गैंग रेप और मर्डर होगा तो नहीं होगा, और ये दोनों आते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज सेक्शन इज अबाउट अ केस। जो रेमिशन के ग्राउंड्स होते हैं कि ऐसे ही नहीं रिलीज होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ऑन द कंडीशंस, कौन से कंडीशंस? ये कंडीशंस आपके लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक्सप्लेन किया गया था। 5 पॉइंट्स है, गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 5 पॉइंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर सम एलएलएम एग्जामिनेशन, एलएलबी एंट्रेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, बस आपको केस का नाम याद होना चाहिए, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ही 5 ग्राउंड्स लेट डाउन किए गए थे फॉर दिस थिंग, राइट, रेमिशन के ग्राउंड्स, राइट। अब ये जो 432 एंड 433 आई टोल्ड यू एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, कमिंग टू दिस पॉइंट, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट 2 मोर केसेस, राइट। बेसिकली जो रेमिशन होता है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, बट इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, नॉट राइट,
इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप रेमिशन को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते, पैरोल को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते, फरलोग को एज अ राइट कम नहीं कर सकते। फरलोग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फरलोग को एज अ राइट आस्क नहीं कर सकते। बट इसमें इस केस में जो था खेयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी यही चीज बताई गई कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट कोर्ट कैन नॉट डिनाई नहीं कर सकते एज अ प्राइम ऑफिसर। आप चेक करिए, आप क्रॉस चेक करिए, बट ये बहुत पुराना जजमेंट है 1989 का। रीसेंट डेवलपमेंट अगर देखा जाए इसमें, तो एक तो आपका हो गया लक्ष्मण नस्कर, एक हो गया ये हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह। हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह में क्या गया था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह, इसमें कहा गया था इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट यू कैन गो टू द कोर्ट टू आस्क। अब कोर्ट को लगेगा कि कंडीशन ठीक है तो हम कर देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं कर, एज अ फंडामेंटल राइट आप क्लेम नहीं करेंगे। तो आपके 3 केसेस हो गए इस पे, लक्ष्मण नस्कर, एक हो गया स्टेट ऑफ हरियाणा, और एक हो गया खेयर सिंह। खेयर सिंह बहुत पुराना केस है, यू कैन स्किप इट, बट लक्ष्मण नस्कर और स्टेट ऑफ हरियाणा याद होना चाहिए, राइट, कि एज अ नॉट अ मैटर ऑफ राइट है, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आता है। तो इतना बहुत हो गया है बिल्किस बानो में आपके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्किस बानो इन एंड आउट क्लियर हो, राइट। मैंने आपको बहुत चीजें बताई हैं इसमें, बहुत डिटेल में बताया है, राइट। तो जस्ट हैव अ ओवरलुक ऑफ दिस बिल्किस बानो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर इट, राइट। और टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, वो पार्डन वाले बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आएगा इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, राइट। और आगे मैंने डाले हैं क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, and in the upcoming videos I'll surely mention, I'll try to mention more questions on this also, right. Coming to the next aspect of today's analysis is about the resolution confuses more than it clarifies, right। इस पूरे आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, एंड आपको क्या पढ़ना है कि आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई 1935 में आया था। तो आप एक बार आरबीआई को देख लीजिए, आरबीआई इज हाउ मेनी मेंबर बॉडी। इसको मैंने बहुत पहले कवर किया था, 6 अगस्त की वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें मैंने इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको कवर किया था, जब आरबीआई ने अपना आरआर बढ़ाया था, रेपो रेट बढ़ाया था। मैंने उसमें रेपो रेट भी बताया, रिवर्स रेपो रेट भी बताया। कमेंट करिएगा रेपो रेट क्या होता है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, 6 अगस्त का वीडियो है। तो ये आपका होमवर्क है आरबीआई को पढ़ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कब आई, और इस पूरे सेक्शन में 2 टाइप दिए गए हैं मॉनिटरी पॉलिसी के, उसको भी पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट में, जिसको आपको ये आइडिया देगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कमिंग टू द एनालिसिस, सो व्हाट वी हैव, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी कहा जाता है। देखिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अगर बात करें तो इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, राइट, इट इज अ 6 मेंबर बॉडी। और एमपीसी में आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई आते हैं, मतलब आरबीआई भी आएगा प्लस एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, ये दोनों आते हैं, मतलब सेंटर के भी कुछ लोग होंगे और आरबीआई। सेंटर के होने जरूरी है ना सर, तभी तो वो पॉलिसी ऊपर नीचे होगी, राइट। और इन्फ्लेशन रेट ये कंट्रोल करता है, इसको इन्फ्लेशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है, 4 ± 5 मतलब 2, मतलब 2 से 6% तक इन्फ्लेशन वेरी करा सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं, राइट। नहीं तो इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज होती है, बट टू मच इन्फ्लेशन इज वेरी बैड, राइट। और ये 1 इन 5 ईयर इसको रिवाइज किया जाता है। और करंट क्या चल रहा है, 4 ± 2। और इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं तो आपको यही क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज क्लैट गो फॉर द मोर फैक्चुअल थिंग rather than problem solving attitude, right। Coming to the next aspect of this news is about there are 2 forms of monetary policy। जो मैंने आपको बताया कि हम टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी देखेंगे, 2 तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। लुक, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब होती है जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है, मैंने आपको बताया 4 ± 2, और अभी क्या है 5.65 है, आई गेस समथिंग 5.75 और 5.5, इट इज जस्ट क्रॉस चेक इट कि अभी इन्फ्लेशन का रेट क्या है। वो बहुत ज़्यादा मतलब रीच पे है, अब ब्रिम पे है वो अपने। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होते हैं कि आप इन्फ्लेशन को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको। कैसे कंट्रोल करेंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक्स को लोन देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और जिस रेट पे दूसरे बैंक मतलब अदर बैंक सेंट्रल बैंक से लोन देते हैं उन्हें हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो 2 है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। रेपो रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक जिस रेट से लोन देती है, और रिवर्स रेपो रेट अदर बैंक्स जिस रेट पे बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देती है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या करते हैं, रेपो रेट को और बढ़ा देते हैं,
ताकि डिमांड कम हो जाए मार्केट में, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, आप भी कम लोन लोगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो लोन कम लेंगे लोग, तो लोन कम लेंगे तो फिर एक्सपेंस वो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी हमारी वर्क करेगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी आती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये इसका जस्ट वाइसा वर्सा है, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसको फॉलो किया जाता है। तो ये तो चलिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, बट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपीसी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है अभी वाली जो हम लोग फॉलो करते हैं, ये उर्जित पटेल साहब की कमेटी थी। उर्जित पटेल एक्स गवर्नर जो थे हम, राइट, उर्जित पटेल, इन्होंने 5 मेंबर बॉडी बताई थी, 5 मेंबर बॉडी, जिसमें से 3 होंगे आरबीआई से और 2 होंगे सेंटर से। अभी कितनी है, 6 मेंबर बॉडी, वो मैं आपको बहुत क्लैरिफाई मैंने डाला है इसमें वीडियो में, यू विल गेट टू नो कि कौन कौन है, उनकी क्या क्या टेन्योर्स होते हैं। और 2013 में ये मॉनिटरी पॉलिसी आई थी। अगर आपसे प्रपोजल्स पूछा जाए तो आप ये नहीं बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी तो उर्जित पटेल की कमेटी थी। इससे पहले प्रपोजल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में पहली प्रपोजल 2002 में आई थी, वाई वी रेड्डी। पूछा जाए तो फर्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कब आई थी, 2002 में। करंट पॉलिसी किसकी है, उर्जित पटेल की कमेटी की। वाई वी रेड्डी की कमेटी थी पहली बार। उसके बाद तारापुर कमेटी बनी 2006 में। 2007 में आपकी परसी मिस्त्री की कमेटी बैठी और रघुराम राजन की कमेटी बैठी 2009 में। यानी 2002, 2006, 2007 एंड 2009 ये कमिटीज हैं। वाई बी रेड्डी, तारापुर, परसी मिस्त्री और आर आर राजन की कमेटी। और करेंटली किसकी कमेटी है, उर्जित पटेल की। पूरा नाम बोले तो उर्जित आर पटेल आई गेस इनका पूरा नाम है। और 5 मेंबर कमेटी उन्होंने रिकमेंड की थी, जिसमें 3+2 की बात कही। अभी 6 लोग हैं टोटल इस पूरे मेंबर में। तो ये तो हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू। आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये एक्चुअली ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है। लुक, इस पे ही मैंने क्वेश्चन डाला है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली बैंक रेट को कंट्रोल करती है। बैंक रेट मार्केट को देखता है, क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट को ही तो इफेक्ट करेगा डायरेक्ट। रेपो रेट को देखता है, रिवर्स रेपो रेट को देखता है और इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। करंट इन्फ्लेशन रेट कितना है, 4 ± 2। तो ये कुछ काम है जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। बैंक रेट, मार्केट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन, राइट, इस पे हमें फोकस करना है प्राइमा फेसाई। कमिंग टू दिस एस्पेक्ट, दो करंट जो प्रोपोजिशन माने जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाए, जस्ट लाइक वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस तरीके से लिंक किया हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को। तो शक्तिकांता दास अभी गवर्नर है, तो शक्तिकांता दास ही इसके चेयरमैन हो, राइट। डेप्यूटी गवर्नर, इनके नाम याद नहीं करने, मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है। इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, 4 to 6 जो लोग हैं उनका टेन्योर 3 साल का, 3 years। ये बैंक वाले लोग हैं, ये सेंटर वाले लोग, इन्होंने 3 दिन का कर दिया, पटेल साहब ने 3 का कहा था। चलिए ठीक है, कुछ तो फॉलो किया हम लोगों ने। 3 लोग हैं, ये सेंटर से आते हैं, राइट। इनका 4 years का टेन्योर होता है। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, सॉरी 3 years का टेन्योर होता है इनका, 3 to 4 years का टेन्योर होता है। जस्ट वी विल हैव अ क्रॉस चेक ऑन इट। और 3 जो सेंटर से आते हैं इनका दोबारा री इलेक्शन नहीं होता है, री इलेक्ट नहीं होते हैं ये, राइट, ये लोग री इलेक्ट नहीं होते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि इनका टेन्योर हमें क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। बस आप कमिटीज के नाम याद रखिएगा। ये पहली कमेटी वाई बी रेड्डी की कमेटी थी 2002 में, और करेंट कमेटी उर्जित पटेल साहब की कमेटी है जो कि 2013 में बनी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज अबाउट दिस। इनका 4 years का टेन्योर होता है, जस्ट आई हैव टोल्ड यू एज कि 4 to 6 जो लोग हैं, 3 लोग, 4 years का टेन्योर होता है, राइट। और ये 3 मेंबर्स जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं एंड नन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आर रीअपॉइंटेड। एक बार जो हो गए, दोबारा रीअपॉइंट नहीं होंगे, राइट। तो ये पूरी चीज़ है आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी होगा। आप इसको लिंक कर लेंगे एक बार आरबीआई से, आप आरबीआई से लिंक कर लेंगे। 1934 की आरबीआई एक्ट है, 1935 में आरबीआई आई, नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ, राइट, वो सेंट्रल बैंक बने। इससे पहले आरबीआई प्राइवेट था, राइट। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर है। नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि 1949 के ही टाइम पे बने थे। इससे पहले 2 इंग्लिश थे।
ऑसबॉर्न स्मिथ पहले थे। बताइएगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि आरबीआई न्यूज़ में है बहुत बार, तो पता होना चाहिए। कमिंग टू दिस मिशैप एट मेघालय कोल माइंस लीव्स नो वन डेड अनदर हर्ट। देखिए आपने कोल माइंस के बारे में बहुत सुना होगा। क्लैट ने एक बार क्वेश्चन भी डाला था रैट होल माइनिंग से रिलेटेड। देखिए रैट होल माइनिंग क्या होता है कि एक, लेट मी शो यू एन इमेज फर्स्ट। ये है रैट होल माइनिंग का एक एग्जाम्पल। रैट होल माइनिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, लाइक मुश्किल से 3-3 फीट के होल्स होते हैं वो। ये बहुत छोटा होल ही है, और ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको डाला जाता है उस होल्स में। कहा जाता है कि तुम अंदर से कोयला निकाल कर, कोल निकालने के लिए इनका यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे ही जा सकते हैं अंदर ना, बड़े तो लोग जा नहीं पाएंगे इतने छोटे छोटे होल्स में, इसलिए इन्हें रैट होल कहा जाता है। छोटे होल्स हैं इसलिए रैट होल्स कहा जाता है। एंड रैट होल माइनिंग इज रिलेटेड टू कोल माइनिंग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन किया है। और इस पूरे टॉपिक में हम, ये तो रैट होल माइनिंग के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसा दिखता है रैट होल, राइट। तो जब भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे, व्हेन यू इवन गूगल द रैट होल माइनिंग, आपको कभी भी किसी और स्टेट का नाम नहीं मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ही नाम मिलेगा ज़्यादातर। जैसे मेघालय हो गया, इनका ही नाम मिलेगा। कभी झारखंड सुना है रैट होल माइनिंग, राइट? झारखंड नहीं सुना होगा आपने। इवन उड़ीसा या फिर रिलेटेड स्टेट्स आपने ज़्यादा नहीं सुने होंगे, राइट? झारखंड, उड़ीसा ये लोग नहीं आते हैं, झारखंड। जबकि यहाँ पर तो कोल बहुत है सर, ये फिर क्यों नहीं होते हैं यहाँ पर रैट होल माइनिंग? तो यहाँ पे रैट होल माइनिंग इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो कोल की जो थिकनेस होती है, ठीक, बहुत अच्छी थिकनेस होती है इनकी, राइट। तो उनको आप ह्यूमनली नहीं कर सकते, कोई भी शाफ्ट या फिर इस तरह के लाइक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आप उसको नहीं कर सकते। यू नीड मशीन्स, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। वहीं पे मेघालय में बहुत पतली पतली कोल्स होती है वहाँ पे, और दे आर द लो क्वालिटी कोल, सल्फर कोल्स होती है वो, बेसिकली सल्फर होता है उन कोल्स में। तो प्रॉपर माइनिंग भी नहीं होती, और एक तो इतना वैली एरिया है तो माइनिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो वहाँ पे रैट होल माइनिंग होती है। और कौन करते हैं ये? बाहुबली टाइप्स के जो लोग होते हैं, जो उस टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं और कोल निकाल के उनको सेल करते हैं। अब बच्चों से निकलवाते हैं। रैट होल में प्रॉफिट ये है उनको कि छोटे छोटे होल्स कर दिए वो इजीली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और बच्चों को डाल के अपने निकाल ली। तो उनका कॉस्ट तो बहुत कुछ लगा ही नहीं, बट इसलिए प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट ये क्या है, कोल माइनिंग, इस तरह की कोल माइनिंग जो होती है रैट होल कोल माइनिंग, उसको इलीगल किया गया था 2014 में बाई एनजीटी। एनजीटी के थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस आर्टिकल में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी जानेंगे। और मेघालय में ही होती है सब चीज़ें। मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, क्योंकि कोल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पतली पतली कोल्स होती हैं, लेयर्स बहुत थिक होती है। और झारखंड के कंपैरिजन में और ज़्यादा, मतलब इट्स अ वेरी स्लिम लेयर इन द मेघालय रीजन, वाइल इन द झारखंड रीजन द लेयर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, they cannot be cut by the instruments that we use in the daily life, but in Meghalaya such things are possible। तो रेट होल माइनिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और रेट होल माइनिंग को कब बैन किया था एनजीटी ने? 2014 में। यहाँ की माइनिंग्स में सल्फर भी होती है। अब ये प्रॉब्लम कैसे, ये मिशैप कैसे कैसे डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए रेट होल माइनिंग में जो अभी हम लोगों ने फोटो देखा, उतनी छोटी स्पेस होती है, 2-3 से 4 फीट की स्पेस होती है। इफ वन हैज एंटर्ड इट, और वैली में क्या है कि पानी कभी भी आ सकता है, राइट? कभी भी वो गिर सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो एक बार जब गिर गया ना, वो बंद हो गया, देयर इज नो कमिंग बैक। देयर इज नो कमिंग बैक, एंड यू कैन नॉट गो बाय द अनदर रूट। वो ब्लॉक हो जाता है, एंड दैट ब्लॉकेजेस क्रिएट अ लॉट ऑफ रिपरकशंस, राइट? तो इसको फोकस करना है। देखते हैं इसमें हमारे पढ़ने के लिए क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया जो डेट आई हैव टोल्ड यू कि 2014 में बैन हुआ था। अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ वर्कर्स होते हैं, 3 to 4 फीट का ही हाई होता है, ज़्यादा होता भी नहीं है, लाइक। और वाटर सोर्सेज को ये एसिडिक करता है क्योंकि सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है। हिल्स का भी नाम दिया हुआ है इसमें, जैंतिया हिल्स। बेसिकली वहाँ पे हिल्स होते हैं गारो, खासी एंड जैंतिया। तो जैंतिया हिल्स के भी बारे में बताया गया है कि जिनको बहुत एसिडिक टर्न हो गया है ये, क्योंकि अब सल्फर निकलेगा पानी में मिलेगा तो सर एसिड तो टर्न होगा ही ना। एनजीटी के बारे में पढ़ना जरूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आर्टिकल 21 से लिंक कर देंगे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही आते हैं बहुत सारे राइट, राइट टू स्लीप, राइट टू जस्ट, राइट टू हैव अ गुड हेल्थ एंड राइट टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट, वो सब आपके इसके अंदर आता है। और एनजीटी एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। टेल मी हु इज नोन एज द ग्रीन जज? ग्रीन जज,
ग्रीन जज कौन? इफ यू डोंट नो आंसर जस्ट आस्क मी सर ग्रीन जज कौन है, आई विल श्योरली आंसर इट, राइट? तो ग्रीन जज का नाम बताइएगा। क्लैट 2017 और 18 ने पूछा था ग्रीन जज का नाम एक बार, राइट? तो उस टाइम भी एनजीटी न्यूज में था और अभी भी एनजीटी न्यूज में, तो यू शुड जस्ट रीड इट वंस। और इस पे आए नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, क्या है हमारे लिए आर्टिकल 21, जो भी मैंने आपको बताया। एनजीटी का बेसिकली ना 5 रीजन्स में होता है। अगर हम उसको मैपिंग करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में आपका न्यू दिल्ली में है, ये तो सबको पता होगा, नॉर्थ में है तो न्यू दिल्ली में होगा। ईस्ट में है तो कोलकाता में है, साउथ में है तो चेन्नई में है, और वेस्ट में है तो भोपाल में। ये याद रखना, ये ऐसे याद रख लीजिए, हो जाए, कोई बड़ी सी बात नहीं है, इसको याद रखना, राइट? और ये जो है इनकी सर्किट बेंचेस भी होती हैं। सर्किट बेंच, सर्किट बेंच मतलब क्या होती है कि अगर न्यू दिल्ली में तो ये नॉर्थ में कहीं भी बैठ सकता है सुनवाई के लिए, कोलकाता में है तो ये भी कहीं भी बैठ सकता है ईस्ट में सुनवाई के लिए, चेन्नई में तो ये हैदराबाद में भी ये बैठ सकता है सुनवाई के लिए, राइट? तो इससे सर्किट बेंच, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं कि आपके दिल्ली में बैठे। ऐसे 2 बार इंस्टेंसेस हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो सिटिंग है उसको शिफ्ट करके किसी और स्टेट ले गए फॉर द पेपर वर्क, और बहुत सारी चीजें होती, तो उस बेंच को हम सर्किट बेंच कहते हैं। तो मूविंग ऑफ द ओरिजिनल बेंच टू अनदर प्लेस इज नोन एज सर्किट बेंच। बताइएगा किस आर्टिकल से सर्किट बेंच फॉर द DULLB परस्पेक्टिव, राइट? और जो फर्स्ट चेयरमैन 2010 में बने थे एनजीटी के फॉर्मेशन के बाद, वो थे लोकेश्वर सिंह पंत। ये ग्रीन जज बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट जज है इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन जज है। बताइएगा ग्रीन जज कौन है, बताइएगा, रिसर्च करिएगा, थोड़ा गूगल करिए, मजे लीजिए स्टडी के, रिसर्च करिए। लॉ तो रिसर्च का ही पहला मतलब स्टेप होता है, लॉ रिसर्च इज द फर्स्ट स्टेप टू लॉ, राइट? तो ये अभी के लिए इतना इसमें। ये ब्लैक होल माइनिंग की फोटो है, एंड इट इज वेरी बैड टू सी दैट सच स्मॉल किड्स हैव बीन फोर्स्ड टू डू सच like hazardous task. It is a hazardous task, right? उसके बाद व्हाट नॉट टू बी मिस टॉपिक एंड दिस एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर फ्रीबीज। पढ़िएगा, फ्रीबीज पे हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, फ्रीबीज का होता है फ्री में सब कुछ मिलना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट, फॉर एन एग्जांपल, कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फ्री के इलेक्ट्रिसिटी बांटे हैं, पानी बांटे हैं, तो उसे ही फ्रीबीज बोलते हैं। बट इससे पहले बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया भी गया था कि फ्री बीज क्यों होना चाहिए। इट्स अ फिलोसॉफिकल आर्टिकल, यू जस्ट हैव अ रीड, कि आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा ये। बट क्वेश्चन आया कि फ्री बीज कहाँ तक सही है और किस हद तक गलत है। इसको हम लोगों ने लिंक किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP से, फ्री फेयर शॉप से लिंक किया था। तो इस तरह से लिंक करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लिंक किया था। तो इस चीज़ को पढ़ना चाहिए आप, यू शुड जस्ट रीड इट वंस, आपके बहुत एनहांस करेगा फॉर थिंकिंग को, अच्छा करता है ये सब चीज़ें पढ़ना। Coming to the next aspect of your check your learning, I will rate it as a difficult part, right? When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his or right. It is the first point. Second is state government have their own prisoners release on payroll rules. I have mentioned it first and second. तो बताइएगा कौन सा सही कौन गलत है। अभी हम लोगों ने परोल और फरलॉग भी पढ़ा है, राइट? हम लोगों ने ये भी बताया कि परोल मैटर ऑफ राइट है या नहीं है, पब्लिक पॉलिसी है। आई एम गिविंग यू द हिंट, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? एंड दिस इज द डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बॉस, बहुत डिफिकल्ट होने वाला, अच्छे से आंसर करिएगा। इजी भी है, अगर आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं तो डिफिकल्ट है, वही चीज़ है। और फिर इसको अच्छे से करिएगा, आंसर बताइएगा क्या है इसका आंसर इस क्वेश्चन का, राइट? तो परोल और फरलॉग के बारे में भी बताइएगा क्या होता है, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है अभी, फरलॉग और परोल, राइट? Coming to the next aspect, with reference to the Indian economy, consider the following. Which of the following are the components of monetary policy? यही बताया मैंने भी थोड़ी देर पहले। बताइएगा कौन कौन से components हैं मॉनेटरी पॉलिसी। 2015 में एक बड़े फेमस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आंसर करिएगा इसका। Coming to the next aspect, rat hole mining is associated with, बताइएगा, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, और कोई और, आंसर करिएगा। Who is known as the green judge? I have put this question here also, so just answer it. अब तो कंपलसरी होगा आपके लिए आंसर करना. Just have a discussion on this. If you have any doubt, just mention in the comment section. I'll surely discuss. Coming to the next aspect, what is next for us? What is the name of the online marketplace feature Matsya Setu mobile app, which is recently launched? ऑनलाइन बहुत चल रहा है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट लाना चाह रही है, वन प्लेटफॉर्म स्कीम, तो उससे रिलेटेड है ये, पढ़िएगा, आंसर करिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट, just mention in the comment section. I will surely answer. Do make notes, do answer the questions and बताइएगा क्या होता है. बिल्किस बानो केस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, there is no doubt कि इस पे क्वेश्चन ना आए, तो इसको पढ़िए अच्छे से.
आंसर करिए. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी. आई एम देयर इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.